تصور کرو، زمین کی پیاسی مٹی پر جب آخری بوند گرتی ہے تو وہ کسی کسان کی فصل کو نہیں بلکہ ایک بے جان مشین کو سیراب کر رہی ہو، جسے ہم اے آئی کہتے ہیں۔ یہ وہ ذہانت ہے جو انسان نے خود تخلیق کی، لیکن اب یہ ذہانت ہماری سانسوں سے زیادہ پانی پی رہی ہے۔ ہر بار تم جب چیٹ کرتے ہو، کچھ دریافت کرتے ہو، کوئی تصویر بنواتے ہو تو دراصل تم اے آئی کی پیاس بجھا رہے ہوتے ہو، مگر اس قیمت پر جو نظر نہیں آ رہی وہ کیا ہے؟ زمین کا پانی۔ اے آئی اب نہ صرف ہماری سوچوں کی شکل بدل رہی ہے بلکہ ہمارے دریاؤں، ہماری نہروں، ہمارے کنوؤں کی گہرائی بھی ناپ رہی۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ کلک کی ایک صدا صحراؤں کو اور پیاسا کر دے گی؟ یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ایک خاموش ارتقا ہے جس کی سب سے بڑی قربانی شاید وہ پانی ہوگا جو کل ہمارے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے درکار تھا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اے آئی جتنی تیزی سے ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو رہی ہے، اتنی ہی خاموشی کے ساتھ یہ زمین کے وسائل خصوصاً پانی کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے۔ دنیا بھر میں جب پانی کی قلت ایک بڑھتا ہوا بحران بنتا جا رہا ہے، تب یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ کیا اے آئی اس قلت کو مزید سنگین بنا رہی؟ اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمن کا یہ کہنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ہر سوال کا جواب دینے کے لیے صرف ایک چائے کے چمچ کا 15واں حصہ پانی استعمال کرتا ہے۔ لیکن کیلیفورنیا اور ٹیکسس کے محققین کا تجزیہ کچھ اور بتاتا ہے۔ ان کے مطابق چیٹ جی پی ٹی ماڈل 3 ہر 10 سے 50 سوالوں کا جواب دینے کے لیے آدھا لیٹر پانی خرچ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیٹ جی پی ٹی ہر سوال کے جواب میں تقریباً 2 سے 10 چائے کے چمچ پانی استعمال کرتا ہے۔ یہ پانی استعمال کہاں ہوتا ہے؟ اے آئی ماڈلز کی جو اس کو ترتیب دینے کے لیے یا اس کو تربیت دینے کے لیے یا اس کا استعمال جاری رکھنے کے لیے انتہائی طاقتور کمپیوٹرز کی ضرورت ہوتی ہے جو بہت زیادہ گرمی پیدا کرتے ہیں۔ انہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے ڈیٹا سینٹرز میں بڑے پیمانے پہ کولنگ سسٹمز لگائے جاتے ہیں جن میں پانی کا استعمال معمول کی بات ہے۔ اقوام متحدہ اس ضمن میں پہلے ہی خبردار کر چکی ہے کہ دنیا کی نصف آبادی کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، اور اگر ماحولیاتی تبدیلی اور بڑھتی ہوئی طلب ایسے ہی جاری رہی تو یہ بحران کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ایسے میں اے آئی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہمارے آبی وسائل کے اوپر ایک نیا اور شاید خطرناک دباؤ ڈال سکتی ہے۔ ایک ایسا دباؤ جو نظر تو نہیں آتا مگر آنے والے وقت میں بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ اے آئی کتنا پانی استعمال کرتی ہے، اس کا دار و مدار کئی باتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ کہ سوال کتنا طویل ہے، کتنا پیچیدہ ہے اور اس کا جواب کس ڈیٹا سینٹر میں پروسیس ہو رہا ہے، اور یہ حساب لگانے میں کون سے تکنیکی عوامل شامل ہیں۔ یعنی ہر سوال کے پیچھے پانی کی ایک الگ لاگت چھپی ہوتی ہے جو صرف بجلی کی کھپت یا کولنگ سسٹمز تک محدود نہیں ہے بلکہ اس پس منظر میں موجود توانائی کی پیداوار تک جاتی ہے۔ امریکن ایکسپرٹس کے اندازوں کے مطابق نہ صرف ڈیٹا سینٹرز کی کولنگ بلکہ بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹس میں استعمال ہونے والا پانی جو ہے وہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمن کا یہ کہنا ہے کہ اعداد و شمار شاید پوری تصور سے پیش بھی نہیں کیے جا سکتے۔ اس حوالے سے بی بی سی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس کے اندر یہ اوپن اے آئی سے تفصیلات طلب کرنے کی کوشش کی مگر کمپنی نے کوئی اضافی معلومات فراہم نہیں کی۔ اوپن اے آئی کے مطابق چیٹ جی پی ٹی روزانہ تقریباً 1 ارب سوالات کے جوابات دیتا ہے، اور یہی نہیں، دیگر کئی اے آئی پلیٹ فارمز بھی اسی رفتار سے کام کر رہے ہیں۔ اب اگر ہر سوال میں صرف چند چمچ پانی بھی استعمال ہو رہا ہو تو مجموعی مقدار ہولناک سطح تک پہنچ سکتی۔ امریکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر یہی رجحان جاری رہا تو 2027 تک اے آئی انڈسٹری سالانہ اتنا پانی استعمال کرے گی جو پورے ڈنمارک جیسے ملک کی سالانہ کھپت سے 4 سے 6 گنا زیادہ ہوگا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر کیٹلی نے یہ خبردار کیا ہے کہ ہم جتنا زیادہ اے آئی کو استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ پانی استعمال ہوتا رہے گا۔ یہ سوال اب محض ٹیکنالوجی یا سہولت کا بھی نہیں رہا، یہ زمین کے بنیادی وسائل کے تحفظ کا بن چکا ہے، اور اگر ہم نے وقت پہ سوال نہ اٹھایا
तो पानी की कीमत पे टेक्नोलॉजी की तरक्की एक महंगा सौदा साबित हो सकती है। ईमेल भेजना हो या ऑनलाइन वीडियो देखना हो, मजमून लिखवाना हो या डीप फेक वीडियो तैयार करवाना हो, इन सब डिजिटल सरगर्मियों के पीछे जो कंप्यूटिंग ताकत काम करती है वो दुनिया भर में फैले हुए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में मौजूद सर्वर्स के जरिए फराहम की जाती है। उनमें से कई डेटा सेंटर का जो हजम है वो फुटबॉल स्टेडियम से भी ज्यादा होता है। जब ये ताकतवर कंप्यूटर्स काम करते हैं तो शदीद गर्म हो जाते हैं और इन्हें मुसलसल ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम दरकार होता है। आमतौर पे उस कूलिंग के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है वो साफ भी होता है और मीठा भी होता है। वही पानी जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है, और बाज कूलिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल होने वाले पानी का 80% हिस्सा जो है वो भाप बनकर फजा में तहलील हो जाता है, यानी ये पानी वापस काबिले इस्तेमाल नहीं रहता। बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है एक पानी मुख्तस हो गया, यानी 500 लीटर गैलन मुख्तस कर दी गई तो 500 लीटर सर्कुलेशन में रहेंगी, ठंडा गर्म होती रहेगी, पानी तो वही इस्तेमाल होगा। लेकिन इसमें यह होता है कि वो भाप बन के उड़ जाता है। रिवायती ऑनलाइन सरगर्मियां जैसे कि वेब सर्च हो या ई शॉपिंग हो, उसके मुकाबले में जब बात एआई की आती है तो ये मामला कहीं ज्यादा हसास हो जाता है, क्योंकि एआई को चलाने के लिए ना सिर्फ कहीं ज्यादा कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल होता है बल्कि उसके लिए दरकार बिजली भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और खासतौर पर जब एआई के जरिए तस्वीर या वीडियोस बनाई जाती हैं तो इस अमल में बिजली की खपत और पानी का इस्तेमाल मजीद बढ़ जाता है। अगरचे इसका दुरुस्त अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल से एक सवाल पूछने पर गूगल पर एक आम सर्च के मुकाबले में कम से कम 10 गुना ज्यादा बिजली खर्च होती है। और जितनी बिजली ज्यादा इस्तेमाल होगी उतनी ही ज्यादा कूलिंग और यूं उतना ही ज्यादा पानी दरकार होगा। ये खामोश मगर संगीन हकीकत है कि टेक्नोलॉजी जितनी तरक्की करती जा रही है, कुदरती वसाइल खासतौर पे पानी पे उसका बोझ उतना ही बढ़ता जा रहा है। और अगर यही रविश बरकरार रही तो वो दिन दूर नहीं है जब डिजिटल सहूलत की कीमत हम पानी जैसी जिंदगी की बुनियादी नेमत से चुकाएंगे। एआई टेक्नोलॉजी का फैलाव सिर्फ डिजिटल दुनिया को मुतासिर नहीं कर रहा बल्कि हमारी जमीन के सबसे कीमती वसाइल पानी के ऊपर भी गहरा असर डाल रहा है। मगर हैरत की बात यह है कि गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और दीगर बड़ी टेक कंपनीज अब भी वाज़ेह तौर पर यह नहीं बताती कि उनके एआई मॉडल्स रोजाना कितना पानी पीते हैं। सिर्फ ये पता चलता है कि उनके मजमूई पानी के इस्तेमाल में गैर मामूली इजाफा हुआ है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की माहौलियाती रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 2020 के बाद से उनके पानी का इस्तेमाल 2 गुना बढ़ चुका है और गूगल ने 2024 में ही 37 अरब लीटर पानी हासिल किया, जिनमें से 29 अरब लीटर पानी बुखारात बन के जाया हो गया। इतना पानी 16 लाख अफराद को एक साल तक रोजाना 50 लीटर पानी साफ मुहैया कर सकता है। या गूगल के मुताबिक ये 51 गोल्फ कोर्सेस के एक साल तक सैराब करने के लिए काफी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का तखमीना है कि 2030 तक एआई डेटा सेंटर्स का पानी का इस्तेमाल मजीद 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि उसमें ना सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग बल्कि बिजली की तैयारी और कंप्यूटर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाला पानी भी शामिल होगा। परेशान कुन बात यह है कि ये डेटा सेंटर्स अक्सर उन इलाकों में बनाए जा रहे हैं जहां पानी पहले ही नायाब है, मसलन एरिज़ोना अमेरिका में, चिली, यूराग्वे और जनूबी यूरोप के कई इलाके। मकामी आबादी जो वहां की है उन्होंने गूगल जैसे मंसूबों के खिलाफ मुजाहिरे किए हैं और बाज मंसूबे इसी दबाव के बायस रोक दिए गए। कंपनीज इस रुझान की वजाहत में ये कहती हैं कि खुश्क इलाकों में नमी कम होने के बायस सर्वर्स के लिए कूलिंग में कम तवानाई खर्च होती है, जमीन सस्ती मिलती है, काबिल तजदीद तवानाई दस्तयाब होती है और रेगुलेशंस नरम होते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या इन सहूलियात की कीमत पानी जैसी जिंदगी बख्श वसीले से अदा की जानी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ये तस्लीम करता है कि वो अपना 46% पानी उन इलाकों से लेता है जो पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है। मेटा 26% और गूगल 14% पानी उन इलाकों से इस्तेमाल कर रहा है जहां पानी नायाब है। मगर अमेज़न अब भी खामोश है, कोई उसकी तफसील मौजूद नहीं। ये सारा माजरा इस नुक्ते के ऊपर आकर ठहरता है कि दुनिया डिजिटल इनकलाब के जुनून में तो मुब्तला है, लेकिन उसकी कीमत कुदरती वसाइल और ख़ास तौर पे साफ पानी की कुर्बानी से चुकाई जा रही है। और अगर यही अंदाज़े, यही रविश मुस्तकबिल में जारी रही तो शायद कल की मसनूई ज़हानत आज के प्यासों के लिए बदतरीन सच बन जाए। एआई को दुनिया की फलाह के लिए एक इनकलाबी ताकत करार दिया जाता है, चाहे वो जहरीली मीथेन गैस के अखराज का सुराग लगाना हो या शहरों में ट्रैफिक को कंट्रोल करना हो कि ईंधन की बचत हो सके। एआई पहले ही जमीन पर इंसानी दबाव कम करने में मदद दे रही है और यूनिसेफ के इनोवेशन डायरेक्टर
थॉमस के नजदीक एआई तालीम, सेहत और माहौलियाती तब्दीली जैसे शोबों में दुनिया भर के बच्चों के लिए गेम चेंजर बन सकती है, बशर्त ये कि उसका इस्तेमाल सिर्फ मुकाबले के जुनून की बजाय मुअस्सर और शफाफ सिस्टम्स की तश्कील में किया जाए। और उसका ये भी कहना है, उसकी ख्वाहिश है कि कंपनीज एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ में सबसे ताकतवर मॉडल बनाने की बजाय अपने मॉडल्स जो है वो ओपन सोर्स करें, ताकि दुनिया भर के लोग उनसे इस्तिफादा हासिल कर सकें और उन्हें माहौल दोस्त अंदाज में बेहतर बना सकें। क्योंकि इस वक्त एआई मॉडल्स को जितना डेटा दिया जाता है और जितना बिजली और पानी उनकी ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता है, वो माहौल पे बड़ा बोझ बन चुका है। मगर यही ख्वाब जो है, इसको लॉरेना को अगर देखा जाए तो उस जैसे माहिरीन जो हैं, इस उनके नज़दीक एक खाम ख्याली, वो ये कहती हैं कि हम एआई को सिर्फ मौसर बना सकते हैं, हम एआई को माहौल दोस्त नहीं बना सकते। क्योंकि जैसे जैसे मौसर मॉडल्स वजूद में आते जाएंगे, वैसे वैसे उनका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा और फिर वसाइल की खपत भी बढ़ती जाएगी। और सबसे बड़ा मसला सिर्फ पानी या बिजली का नहीं है, मसला उस पूरे निज़ाम का है जो तरक्की की दौड़ में कुदरती वसाइल को नज़रअंदाज करता जा रहा है। और वो खबरदार करती है कि हम जिस रफ्तार से बड़े और तेज एआई सिस्टम्स बना रहे हैं, जो तवील मुद्दत में हमारे पास उनके लिए कुदरती वसाइल ही नहीं छोड़ेंगे। ये सवाल अब टेक्नोलॉजी का नहीं, इंसानियत की बका का है कि हम तरक्की तो चाहते हैं, लेकिन ज़मीन की सांस भी बाकी रखना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS और मेटा पानी के बढ़ते इस्तेमाल पर तनकीद का जवाब एहतियात और वादों के जरिए दे रही हैं। और उनका कहना है कि वो कूलिंग टेक्नोलॉजीज का इंतखाब हर मकाम के मौसमी और माहौलियाती हालात को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। और इन सब ने 2030 तक वाटर पॉजिटिव बनाने का हदफ मुकर्रर किया है, यानी जितना पानी वो इस्तेमाल करेंगे उससे ज्यादा वापस माहौल में शामिल करने का वो इरादा रखते हैं। और ये कंपनीज इस मकसद के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर सरमायाकारी कर रही हैं, जैसे जंगलात या दलदली इलाकों की बहाली, पाइपलाइंस के रिसाव की मरम्मत या जदीद आबपाशी निज़ाम की तनसीब, ताकि पानी ज़ाया ना हो और कुदरती निज़ाम को तक़वियत मिल सके। मिसाल के तौर पे AWS का ये कहना है कि वो अपना 41% हदफ मुकम्मल कर चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट मंसूबे के मुताबिक चल रही है, गूगल और मेटा ने अपनी पानी की बहाली की कोशिशों में खातरखा इजाफा किया है, लेकिन माहिरीन अब भी मुतमईन नहीं। यूनिसेफ के थॉमस का ये मानना है कि इन अहदाफ तक पहुंचने के लिए भी तवील सफर बाकी है, जबकि प्रोफेसर शाउली का ये कहना है कि पानी के इस्तेमाल के ज्यादा शफाफ और मरबूत जो है उसके मुताबिक रिपोर्टिंग नागुज़ीर है, पता चले कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा। और उनके अल्फाज में अगर हम पानी के इस्तेमाल को माफ ही ना सकें तो उसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। ओपन एआई ने यह एतराफ़ किया है कि वो पानी और तवानाई के मौसर इस्तेमाल पर संजीदगी से काम कर रहे हैं, मगर साथ में ये भी माना है कि कंप्यूटिंग पावर के बेहतरीन इस्तेमाल पर गौर आज भी उतना ही अहम है जितना पहले कभी था। वादे अपनी जगह, मगर असल सवाल अपनी जगह है कि टेक्नोलॉजी की रफ्तार और ज़मीन की बर्दाश्त क्या एक दूसरे से हम आहंग हो सकते हैं। मुस्तकबिल बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।